Hello everyone. Science chapter 10 we will study about habitat and adaptation. In this chapter we include habitat, adaptation and acclimatization. Habitat. The term habitat means the place where an organism lives naturally and reproduce. We call it its habitat. The components in a habitat are broadly classified into two categories. They are biotic and abiotic components. The biotic components are the living organisms, and the abiotic components include air, water, rock, light, soil, etc. Habitats can be broadly classified into two categories. One is terrestrial and the another one is aquatic. Terrestrial habitat. Habitat on land are called terrestrial habitat. Some terrestrial habitats are forests, mountains, grassland, desert and polar region. Now one by one we will discuss terrestrial habitat. First is grassland. Grassland is the region which is dominated by grass, small trees and shrubs. वो रीजन जहाँ पर कि ज़्यादा क्या होती है, ग्रास होंगी, स्मॉल ग्रास होगी और shrubs मिलेंगे आपको. This region is having moderate rain and are usually windy and dry. Main animals which are found in this region are zebra, giraffe, deer, tiger, etc. Second one is mountains. Mountains are the habitat which are found at higher altitudes. जो ज़्यादा ऊंचाई पे मिलते हैं हमें वो क्या हमारा mountain पे भी. They are usually cold and windy. Depending on the altitude, these regions sometimes experience snowfall as the temperature decreases. हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो इस रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, तो कई बार यहाँ पर इस रीजन में स्नोफॉल भी होता है. सम एनिमल्स विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर yak, sheep, mountain goat, etc. Forest habitat are usually dominated by the presence of large number of plants and trees. फॉरेस्ट वो रीज़न होता है, ये हैबिटेट है जहाँ पर मेनली किसकी प्रेजेंस होगी, बड़े बड़े प्लांट्स मिलेंगे और ट्रीज मिलेंगे. एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ रिलेशनशिप टू सर्वाइव. यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप मिलेगा आपको, जो वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसके अंदर. तो वो एग्जाम्पल है आपके लिए प्रीडिटर प्रे का रिलेशनशिप, मीन्स शिकार और शिकारी का रिलेशनशिप. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन लायन एंड द डियर. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री different types. One is tropical forest, second is temperate forest and the third one is boreal forest. First is tropical forest. Tropical forest जो है they are mainly found near the equatorial region. Equatorial equator के पास वाले region में मिलेगा. They experience high temperature and a significant amount of rainfall. These forests receive the maximum rain. We call that type of forest are ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रेन होता है तो उनको हम कह देते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड दे आर द होम टू ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीसीज़. आपको विश्व की जो है आधी स्पीसीज़ इसी फॉरेस्ट में मिलेगी. प्लांट्स में यहाँ पे जो मेनली प्लांट्स मिलते हैं वो हैं ऑर्किड, वाइन, मॉसेस, फर्न्स. एंड द एनिमल्स विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर एलिफेंट, किंग कोबरा, hornbills, parrot, etc. सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट जो है मेनली मिलते हैं हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कुछ पार्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में भी. दे में शो अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट. यहाँ पे आपको अलग अलग रेंज मिलेगी क्लाइमेट की, बट जो विंटर्स होती है वो माइल्ड होती है और रेनफॉल जो है वो मॉडरेट रहता है, जो इसका मेन कॉमन फीचर है. प्लांट्स विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर oak and pine, and the animals which are found in temperate forest are deer, giant panda and various other species of birds and insects. Third type of forest are boreal forest. Another name of boreal forest is taiga forest. They are located at high altitude and constitute a harsh environment.
हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो बहुत हार्श होती हैं, कठिन होती हैं। दे हैव वेरी लो टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल मिलता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की लैकिंग होगी, स्केर्सिटी होगी, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर पार्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर फिल्ड विथ स्नो, स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर रैबिट, बियर, वुल्फ, आउल। वेयर एज वेजिटेशन में मेनली कोन बियरिंग प्लांट्स मिलेंगे आपको जिनकी निडल लीफ होती है और स्केल लीव्ड होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं इस रीजन में, लाइकवाइज पाइन है, फर है। डेजर्ट्स आर सैंडी लैंड्स विद स्कैंटी रेनफॉल। मेनली यहाँ पे सैंडी सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है और रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। मोस्ट डेजर्ट्स गेट लेस देन 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल ईच ईयर। पूरे साल में 10 इंच से भी कम बारिश होती है और वेरी हॉट होते हैं एंड ड्राई। डेजर्ट्स दैट आर हॉट ड्यूरिंग द डे मे बिकम कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट की स्पेशलिटी यही होती है कि दिन में तो वहाँ पे जो है वो गर्म होंगे और रातें जो है वो ठंडी होती हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलवेज कोल्ड। कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही ठंडे रहते हैं। एग्जाम्पल है आपका गोबी डेजर्ट इन एशिया एंड द डेजर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। The largest hot desert in the world is Sahara in Africa, which experiences temperature of up to 122 degree Fahrenheit during the डे टाइम में। प्लांट लाइफ जो होती है डेजर्ट के अंदर उसमें हम इंक्लूड करते हैं मेनली कैक्टई जो कि थॉर्नी प्लांट्स हैं। उसी के साथ में एनिमल्स में आएंगे जो मिलेंगे आपको डेजर्ट में, आदा कैमल, कंगारू रैट, रेटल स्नेक एक्सेट्रा। लास्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आता है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर्स। थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है और बहुत ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर कैन गो एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, पेंगुइन, सेल, वॉलरसेस। एक्वेटिक habitat in water, we call it as a aquatic habitat, and the example of aquatic habitat are freshwater habitat, marine habitat, estuaries and coral reefs. Freshwater habitat, these are the water bodies filled with fresh water. ये वो habitat है जो कि इसके अंदर की जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं वो फ्रेश वाटर से फिल्ड होती हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट में जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। वाटर प्रेजेंट हैज़ वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत कम होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेज, फ्रॉग, वाटर लिली आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। मरीन हैबिटेट, ocean and sea are termed to be as marine habitat. These are saltwater habitat. Different varieties of organisms exist in marine habitat. Likewise, organisms, plankton, seaweeds, fish, whales, fishes, sharks, and many other are found in this habitat. Estuaries. Estuaries are the region represented by the place where land meets the sea. जहाँ पर की ज़मीन जो है वो सी से मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि एस्चुरीज जो बनती हैं आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्ट वाटर मिक्सेस विद द फ्रेश वाटर. These habitats are unique. Special types of trees called as mangroves are found in this region. Along with other animals which are found in this region are horseshoe crabs, different types of fishes, shellfish such as shrimp and salmon lives in estuaries. Coral reefs. Coral reefs is a community of underwater creatures called corals. ये कम्युनिटी है जो कि अंडर वाटर क्रिएचर्स है जिनको हमने कहा है कोरल. इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स, फिशेज एंड मैनी अदर एनिमल्स. कोरल्स जो होते हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं प्लेस रहने के लिए प्लांट्स को, फिशेज को. दे आर मेड अप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल्स. The animals and plants which are survive on these corals are
sponges, lobster, snail, octopus, dolphins, etc.